My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु की बहुमूल्य संतानों, हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम में आप सभी को अभिवादन। Today we are going to meditate from Matthew chapter 5 verse 6. आज हम मनन करने वाले हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 6 से। It says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." ये कहता है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। My friend, this is a beautiful life. मेरे दोस्तों, ये बहुत सुंदर जीवन है। Thirst for righteousness धार्मिकता के लिए प्यासे हो जाएं and hunger for it. और इसके लिए भूखे हो जाएं, And then you will be satisfied in your spiritual life. तब आप अपने आत्मिक जीवन में संतुष्ट होंगे। Some people, when we pray for them in the individual prayers, they used to ask us, "What is the will regarding me? Tell me." And ask the Lord, they will say. कई बार जब लोग खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो वे पूछते हैं कि आप हमें पूछकर बताइए कि हमारे जीवन के लिए प्रभु की इच्छा क्या है। My friends, this is what the Lord expects you to have. मेरे दोस्तों, प्रभु आपसे यही तो अपेक्षा करता है To have thirst for righteousness. कि धार्मिकता के लिए प्यासे हो जाएं। If you have the thirst, you will be satisfied in your spiritual life. अगर आप प्यासे होंगे तो अपने आत्मिक जीवन के लिए आप संतुष्ट होंगे। Genesis chapter 15 verse 6. उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 6, Galatians 3:6. गलातियों 3:6 And James 2:23 says, और याकूब 2:23 कहता है, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। Abraham was a man of God अब्राहम परमेश्वर का दास था, and he believed God. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। Because of his belief in the Lord, he became a righteous person. परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण वो धर्मी व्यक्ति बन गया। Psalm 15:2 says, भजन संहिता 15:2 कहता है, He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। My friends, have a righteous walk with the Lord. दोस्तों, परमेश्वर के साथ धार्मिकता में चलें। David also says in Psalm 17:15, As for me, I see your face in righteousness. दाऊद भजन 17 और 15 में ये कहता है, मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। In the Bible, all the divine people like Daniel, David, Job, they all had a righteous life. बाइबल में दानियल, दाऊद, अयूब जैसे भक्तिपूर्ण लोग, इनका धार्मिकता का जीवन था। Yes, friends, we should also thirst for a righteous life. हाँ दोस्तों, हमें भी धार्मिकता के जीवन के लिए प्यासे होना है। We should hunger for it. उसके लिए भूखे हो जाना है। 12 o'clock, 1 o'clock, noon comes and we say, "Oh, I am hungry." 12 बजे, 1 बजे दोपहर में कहते हैं हमें भूख लगी है। In the same way, we should hunger for the righteous life. इसी तरह हमें धार्मिकता के जीवन के लिए भूखे होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। 37 Psalm 5th verse says, भजन 37 वचन 5 ये कहता है, For that what we have to do? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। Commit your ways completely before the Lord. अपने सारे मार्ग परमेश्वर को सौंप दो। Father, lead me and guide me. Every day you pray like that. हर दिन इसी तरह प्रार्थना करें, प्रभु मेरी अगुवाई कर। If you have a true faith with the Lord, to have a close walk with the Lord will give you a righteous life. यदि आप प्रभु की नजदीकी में चलेंगे तो प्रभु आपको धार्मिकता का जीवन देगा। And my beloved friends, we are going to pray right now. All of us are going to ask the Lord to give us the righteous life. दोस्तों, अब हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से हम सब मिलकर धार्मिकता का जीवन Shall मांगेंगे। we pray? आइए प्रार्थना करें। Father, thank you, Lord, for the blessing you are giving to your children. धन्यवाद प्रभु, तू अपनी संतानों को ये आशीष दे रहा है। We here, all of us are your children, Father. हम सब यहाँ तेरी संतान हैं पिता। We are crying unto you to give us a righteous life like Abraham and David. तुझे पुकारते हैं कि अब्राहम और दाऊद के जैसा हमें धार्मिकता का जीवन दे। Change our lives completely, Lord. हमारा जीवन पूरी तरह से बदल दे प्रभु। We are clinging on to you right now. इस वक्त हम तुझे थामे हुए हैं। Give everyone a pure, righteous life.
सबको शुद्ध धार्मिकता का जीवन दे, so that we will make you rejoice ताकि तुझे हम प्रसन्न करें because of us. हमारे कारण। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। यूटर्न युवा महोत्सव रांची में दिसंबर 7 को सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक। दिशा तलाश रहे हो, उद्देश्य की तलाश में हो, यह परिवर्तन को प्रज्वलित करने और उन उत्तरों को खोजने का स्थान है जो आप तलाश रहे हैं। आपका भविष्य यहीं से शुरू होता है। इंतजार मत करो, आज रजिस्टर करें, कल परिवर्तित होइए। यूटर्न युवा महोत्सव नेतृत्व करेंगे सैमुअल दिनकरन, स्टेला रोमोला और डैनियल डेविडसन। पंजीकरण के लिए jesuscalls.org या uturn.in पर जाएं। दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या QR कोड स्कैन करें। चूकिएगा मत।